Do you know how to convert unit from one to another? If not, this video is going to be very interesting for you. Hi everybody, welcome back to my channel again. Today in this class I am going to tell you about the unit conversions. This is one of the most recommended video because most of my viewers asked me to take the basic class of unit conversions. So here am I. Without wasting any time, let's get started. Listen carefully. If you skip the video, you won't understand later. Again, you have to move back and listen. That's why I'm requesting you to watch till the end without skipping. Okay? What is unit conversion? How to convert units from one to another? For that, you need to know the basics first. For example, if we have to convert the centimeters to meters or length to meters or gram to kilogram, so here we'll discuss only the basics which is used in our day-to-day lives or daily lives. Okay, let's start. Distance or length is the most important part in our daily life. Well, because as soon as we get up, we go for jogging or walking. Then we'll say, today I walk for 2 kilometers. That's why. So we'll start with this only. Okay. 1 mile is equal to 1.609 kilometer. Here km is nothing but kilometer. 1 mile is equal to 1.609 kilometer. सो वही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो इट्स इक्वल टू 1000 मीटर्स. हियर यम इज मीटर्स. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. फर्स्ट आप वन बाय वन देखते जाइए. लास्ट में हम इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे सो दैट यू विल गेट द क्लियर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक. ओके, सो देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. Okay, whenever we talk about 100 centimeters, it's perfectly equal to 1 meter. वही अगर 1 centimeter की बात करें, 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Here yum is nothing but millimeter. Okay, let me show you by taking scale weight. Yes, this is. So इसमें देखिए ये सेंटीमीटर्स का स्केल है. आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना, ये तो सेंटीमीटर्स का स्केल है. सो ये 1 to 2 10 लाइन्स होते हैं ना, 1 और 2 के बीच में हमको 10 लाइन्स दिखाई देते हैं. इस 10 लाइन्स को हम मिलीमीटर कहते हैं. ओके, देन कम्स टू इंचेस. 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स. देन कम्स टू फुट. 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर्स. जब हम एक फुट की बात करते हैं तो हम उसको सेंटीमीटर्स में कैसा कन्वर्ट करना है? 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर्स. 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर्स. ये हो गई लेंथ और डिस्टेंस की यूनिट्स. ओके, नाउ विल जस्ट मूव टू द मास और वेट. मास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. Suppose when we go for market to buy some fruit or vegetables or anything, all those will be weighted. So for that purpose we need to know its units. Okay, 1 ton. टन को हम TON भी कह सकते हैं, TONNE भी कह सकते हैं. 1 ton is equal to 1000 kilograms. kg is nothing but kilograms. Don't be confused. This is kilometer. Use it for distance. Here kilogram. This is used for weights only. Okay, 1 ton is equal to 1000 kilograms. वही हम 1 kg की बात करते हैं तो 1 kg is equal to 1000 grams. 1 kg में 1000 grams होते हैं. और वही 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 1 ग्राम is equal to 1000 milligrams. Okay, got it? Then we'll just move to the time. 1 day is equal to 24 hours. Okay, we all know 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. इसको और भी है seconds. 1 second is equal to, उसमें तो हमको पॉइंट में आता है. But as I said you in the beginning that today we'll only discuss the basics which we come across in our daily lives. That's why I have taken only these 3. Okay, let's move. अब हम कैपेसिटी और एल्स वॉल्यूम की बात करते हैं. कैपेसिटी और वॉल्यूम हमको कहाँ यूज़ करना पड़ता है? जब भी हम मिल्क लेते हैं या फिर वाटर लेते हैं, उसको हम लीटर्स में उसको मेजर करते हैं. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. ml इज नथिंग बट मिलीलीटर्स. 1 liter is equal to 1000 milliliters.
And again see here, 1 liter is equal to 1000 cubic centimeters. Okay, 1 pound is equal to 0.454 kilogram. Okay, 1 kg is equal to 2.205 pound. Now I will tell you how to convert those units. For that उसके लिए आपको एक हिंट की ज़रूरत पड़ती है और मैं वो हिंट भी बताऊंगी, पर उससे पहले आप इसको देखिए. हैव ए लुक एट दिस. मैंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके में यहाँ पे सेट करके रखा है, जैसे कि बड़ी यूनिट सारी एक तरफ और छोटी यूनिट सारी एक तरफ, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. लेट्स मूव टू द हिंट. ओके, और वो हिंट क्या है? हिंट ये है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को जाते हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. ओके, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, एंड अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट को जाना है, देन वी हैव टू डिवाइड इट. हमको डिवाइड करना पड़ता है तब. ओके, सपोज यू मे गिवन ए क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज द कन्वर्शन ऑफ 9 लीटर्स टू मिलीलीटर्स. सो जब हमको 9 लीटर्स वो मिलीलीटर 9 लीटर्स हमको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने का पूछा गया, तो तब हम मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 1 लीटर इक्वल टू 1000, देन यहाँ पे 9 दिया है ना, 9 इंटू 1000 9000 हो जाता. और वही अगर हमको मिलीलीटर्स में क्वेश्चन दे के लीटर्स में पूछा जाए, तो हमको क्या करना है? डिवाइड करना पड़ता है. Why? Because the ml is the small unit and liter is the big unit. That's why. We'll just understand this by using some examples. Okay? Okay, let's see some examples so that आपको एक clear idea हो जाए. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 30 किलोमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स. सो यहाँ पे देखिए, किलोमीटर्स बड़ा है कि मीटर्स बड़ा है? क्या बड़ा है? मैंने क्या बोला था आपको? किलोमीटर्स. किलोमीटर्स इज द बिगेस्ट व्हेन कंपेयर टू मीटर्स. सो हमको फॉर्मूला भी पता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स. मैंने क्या बोला है? जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, देन 30 किलोमीटर्स इक्वल टू 30 इंटू 1000 meters. The answer will be 30,000 meters. समझ में आ गया? ये आपका आंसर है. अगर 30 किलोमीटर्स को हमको मीटर्स में बताना है, तो 30 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 30,000 मीटर्स. ओके, लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. 45 सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स. और यहाँ पे ये यूनिट बड़ी है कि ये यूनिट बड़ी है? लेट्स चेक द टेबल. सो देखिए, सेंटीमीटर्स बड़ा है व्हेन कंपेयर टू मिलीमीटर्स. सो हियर ऑल्सो वी हैव टू डू अगेन मल्टीप्लीकेशन. वाई? बिकॉज वी आर गोइंग फॉर बिग टू स्मॉल. 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. सो देन अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मिलीमीटर्स है, देन 45 सेंटीमीटर्स की वैल्यू हमको होता है 45 इंटू 10, दैट इज 450 millimeters. This is our answer. Okay, let's see the third one. 200 seconds is equal to how many minutes? इसमें ये यूनिट बड़ी है कि ये यूनिट बड़ी है? Of course this is the big one and this is the smallest one. और यहाँ हमको क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, मतलब we are going from smaller to big. स्मॉल से हम बिग की तरफ जा रहे हैं. सो स्मॉल से जब हम बिग की तरफ जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको डिवाइड करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? हमको डिवाइड करना पड़ता है. लेट्स सी. हमको पता है कि 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स होती है, और जब हमको 200 सेकेंड्स की वैल्यू मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन विल डिवाइड. यहाँ पे कितने सेकेंड्स दिए? 200 सेकेंड्स दिए, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 60. जब हम करेंगे तो 0 0 गेट कैंसल्ड, 2 3s, 2 1s, 2 zeros, then 3 1s, 3 3s, 0.3, again 3 will come. So our final answer will be 3.3 minutes. Okay, approximately. अगर 200 सेकेंड्स हमको मिनट में बताना है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 3.3 मिनट्स होता. ओके, लेट्स सी द फोर्थ एंड द लास्ट वन. 30 सेंटीमीटर्स टू इंचेस. इसमें बड़ी कौन सी वैल्यू है और छोटी कौन सी वैल्यू है? ऑफ कोर्स इंच इज द बिगेस्ट वन, whereas centimeter is the smallest one.
सो हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड. सो 1 इंच की वैल्यू हमको तो पता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स. नाउ वी हैव टू टेल 30 सेंटीमीटर्स टू इंचेस, मीन्स वी हैव टू डिवाइड 30 to 2.54. then whatever the answer will get, it gives the answer in inches. so यहाँ पे हमको क्या करना है, ये इस पॉइंट को हटा के इंटू 100, मतलब यहाँ 30 इंटू 100 आता है बाई 254. जब हम कैंसिल करते हैं देन विल गेट द फाइनल रिजल्ट. वन थिंग कीप इन माइंड दैट आपको सभी बड़ी यूनिट्स क्या है और छोटी यूनिट्स क्या है, ये सब आपको नोटेड हो जाना चाहिए. देन ओनली यू कैन ईजिली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एनीवेयर. okay, that is conversion of big unit to small unit or small unit to big unit. and along with that आपको ये भी याद रहना चाहिए कि जब हम बड़ी से छोटी हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जब छोटी से बड़ी हो जाते हैं तो डिवाइड करते हैं. दिस वन ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट. okay guys, I hope you all understood this class well, that is the basics of unit conversions. and if you find this video is helpful to you, please don't forget to share with your friends, and do subscribe and press the bell icon for notifications. Thank you so much.